Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying our next chapter, chapter number 16 of the alternating current. And just before starting our topic, the alternating current, we should keep some points in mind that we have to discuss in this topic. And in these points, the first of all is what is an alternating current. Means we must have an idea about the nature of the alternating current as compared to the direct current. The second one, why an AC is preferred over the DC. The third point, the sources of the alternating current. And the next is the output of a generator, because the AC generator is the most common source of the alternating current, and we have to discuss the different values of the output of this device, means the generator, at the different intervals of the time. And at the end we have to discuss some of the attributes of the alternating current, and in these attributes we have to talk about the time period, the frequency, angular frequency, instantaneous value of the voltage or the current, means that is alternating quantity we have to discuss, and its peak to peak value, and the root mean square value. These points we must have in mind just before discussing the topic. Students, first of all, we have to define the alternating current. The alternating current may be defined as an electric current which periodically reverses its direction and changes its magnitude continuously. इसको हम एक और सिंपल अंदाज में भी अल्टरनेटिव करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि करंट दैट गो ऑन चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, एक ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी को बदलता रहता है, अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, इसको हम बाय डायरेक्शनल कहते हैं। जो अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द करंट दैट गो ऑन चेंजिंग इट्स पोलैरिटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, याद रखिएगा। एंड वेयर एज द डायरेक्ट करंट which flows only in the one direction, it does not change its polarity, it flows in the one direction, this is called the direct current. स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के दो सर्किट्स दिखाए गए हैं, और इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो करंट दिखाया गया है, इसमें करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है। जो सर्किट दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे अगर इनके एरो हेड को, साइंस को अगर फॉलो किया जाए तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या बनती है, क्लॉकवाइज बनती है। जबकि अल्टरनेटिव करंट में हमारे पास जो है वो बाय डायरेक्शनल बनती है, मींस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है। इस डायग्राम में हमने करंट की डायरेक्शन के हवाले से बात की है, और नेक्स्ट डायग्राम में हम सोर्सेज की पोलैरिटी के हवाले से बात करेंगे। मतलब इस डायग्राम में हमें जो सोर्स दिखाया गया है, जो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम दिखाई गई है, उस डायग्राम में जब टाइम पीरियड 0 से लेके t/2 होता है तो वन एंड ऑफ द सोर्स, सपोज द upper end of the source is positive, the lower one is negative, means this is the polarity during the time period from 0 to the t/2, and in this direction we have seen the direction of the current is in the clockwise direction. And in the next diagram, that is on the right side of this page of this slide, the time period is from t/2 to t, means हाफ से लेके जब t पूरा हो जाएगा हम उस टाइम पीरियड के हवाले से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जो पोलैरिटी थी वो बदल गई। सोर्स के हवाले से जो अपर एंड जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया, और जो लोअर एंड पहले नेगेटिव था अब वो जो है वो डायग्राम सेकंड में आके वो पॉजिटिव हो गया, मीन्स के सोर्स हैज़ चेंज इट्स पोलैरिटी। सो दिस the direction of the in this time period, that is the next half cycle of the time period, इसमें जो डायरेक्शन बनती है करंट की वो क्या बनती है, वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है। मीन्स के ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड the current flows in the clockwise direction, and during the next half time period the current is flowing in the anti-clockwise direction. So what is the conclusion? The current go on changing its polarity, the current changes in its direction during the first half cycle, during the first half of the time period it flows in the one direction, and during the next हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो वो अपोजिट हो जाता है। तो इस डायग्राम में हमने ये समझना है कि वो किस तरीके से अपनी करंट की डायरेक्शन को बदलता है। उससे पहले डायग्राम में हमने बताया कि करंट जो है वो अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट यूनि डायरेक्शन होता है और अल्टरनेटिव करंट जो है वो बाय डायरेक्शनल है। मीन्स के अल्टरनेट जो डायरेक्ट करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में मुसलसल
कॉन्टीन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट अगर हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इट गो ऑन चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। The next point that we have to discuss why an AC is preferred over DC. स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के इस टॉपिक में सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस करनी है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन इजीली बी ट्रांसफॉर्म्ड एज कम्पेयर टू द डीसी। हमने टॉपिक पढ़ा है ट्रांसफार्मर के हवाले से, और हमारे पास ट्रांसफार्मर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और हम उसमें अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज़ को, वोल्टेजेस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक आइडिया है, जो की पॉइंट है कि हम एसी को प्रेफर करते हैं ओवर द डीसी। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड एज कम्पेयर टू द डीसी। सेकेंड वन, alternating current can be controlled by a wide range of the equipments such as resistors, capacitors and inductors, means इसे easily control किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि high value of the voltages, it allows high voltage electrical power to be distributed with small wires and lower amperage, means wires and ampere हमारे बहुत कम लगते हैं और हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस इजीली एट अ वेरी लो कॉस्ट। लो कॉस्ट से आप इसको लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। दीज आर द रीजंस बाय विच वी आर प्रेफरिंग द अल्टरनेटिव करंट ओवर द डायरेक्ट करंट। सोर्सेज ऑफ द अल्टरनेटिव करंट क्या होंगे, नेक्स्ट हम इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं। One of the most important source of the alternating current, that is the generator we are having in our society, in our institutions as well. So basically generator is a device that can convert the mechanical energy into the electrical energy. The second maybe the source is the alternators, and it is working on the same principle as that of the generator, but they are using the rotating magnetic field with a stationary armature. The next one is the LC oscillators, and these are the electronic circuits basically which are continuously generating the periodic waveform. And basically these circuits are the LC circuits, means इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है और एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ड्यू टू दिस ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, अल्टरनेटिव करंट जो है वो जनरेट होता है। The next source is the crystal oscillator, that is basically again electronic oscillator that is using mechanical resonance of the vibrating crystals of the piezoelectric materials to generate the alternating current. And the last one is the inverters, and these inverters basically are the devices which are converting the direct current into the alternating current. So these are the different kinds of the devices which can be used to generate as a source of the alternating current. We can also discuss the sources of the direct current as well. The battery, dynamo, fuel cell, solar panels, wind turbines, rectified AC and thermocouple devices, etc. These may be the sources of the direct current. Students, next we have to discuss the different values of the voltages for the most commonly used device, that is generator. और इसमें एक सर्किट डायग्राम आपको जैसे आईडी दिखाया गया है। इससे पहले आप लोग पिछले चैप्टर में जनरेटर को पढ़ चुके हैं और उसमें आपने इसके कंपोनेंट्स के हवाले से, इसकी वर्किंग के हवाले से, इसके प्रिंसिपल के हवाले से पढ़ा है। यहाँ बात जो डिस्कस करना चाहूँगा, जो रिकॉल करना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम इसके आउटपुट को या ईएमएफ को, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को फॉर द जनरेटर हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको याद होगा हमने एक बेसिक इक्वेशन यूज़ की थी, और उस बेसिक इक्वेशन में हमने मोशनल ईएमएफ की वैल्यू यूज़ की थी, जिसमें हमने फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द लूप हमने वीबीएल साइन थीटा की इक्वेशन लगाई थी, और उसमें हमने वी और बी के एंगल के हवाले से बात की थी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में और फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, दैट इज अ बेसिक कंडीशन फॉर द जनरेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. So the value of the EMF go on changing as the coil is rotating in the magnetic field, because the coil rotates in the magnetic field and it has different values of its angle with respect to the magnetic field. So the value of the alternating current go on changing.
और इस टॉपिक को हम लास्ट टाइम जो है वो पढ़ चुके हैं कि स्पेशली सपोज अगर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी वेक्टर्स होता है लेंथ सेगमेंट्स का वो पैरेलल होगा, तो वैल्यू ऑफ द ईएमएफ पैदा हो रही है जो इसमें जनरेटर में वो ज़ीरो होगी। तो जब ये कॉइल पैरेलल हो जाएगी तो वेलोसिटी वेक्टर्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, साइन 90 की वैल्यू फिर मैक्सिमम होती है 1 होती है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पैदा होगी। मीन्स कि जब कॉइल रोटेट करती है एट द डिफरेंट इंटरवल्स वी कैन हैव द आइडिया अबाउट द आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटिव करंट दैट इज बीइंग जनरेटेड। तो इस इक्वेशन में इस कंडीशन में जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन बनती है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी। इसमें जो छोटा टी दिखाया गया है वो टाइम पीरियड को ज़ाहिर करता है। आपने स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को याद रखना है, और इसमें ये बेसिक इक्वेशन है जो यहाँ पे आपको स्लाइड में ग्रीन कलर से दिखाई गई है, और इस इक्वेशन में आप स्मॉल टी दैट रेफर्स टाइम, इसके टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ को आप पुट करते चले जाएंगे, और फिर इस तरह आप साइन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। साइन की वैल्यूज़ के साथ आपको आइडिया मिलेगा कि हमारे पास जो आउटपुट है अल्टरनेटिव करंट की वो कितनी बनती है। और ये टाइम पीरियड बेसिकली कॉइल की रोटेशन है डिफरेंट एंगल्स पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इस तरह हर डायग्राम में आपको एक जो है हर एक एंगल के साथ या टाइम के साथ आपको एक स्लाइड पे वेव फॉर्म भी दिखाया गया है, और इस वेव फॉर्म में रेड कलर के साथ उस पर ईएमएफ की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पे शो किया गया है। तो फर्स्ट केस, ये केस हम खुद से इसको डिसाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर टाइम पीरियड और द एंगल with the coil is rotating in the magnetic field. Actually, the coil is continuously rotating, but for our understanding, we can have the different cases regarding different time period and the angles. So first, in the first case, when the time period is equal to 0, means अगर आप वो जो ग्रीन इक्वेशन आपको दिखाई गई है उसमें आप t की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा। मीन्स हमारी आउटपुट जो बनती है वो v इज इक्वल टू जो होगा v नॉट साइन ओमेगा इंटू टाइम पीरियड दैट इज 0, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। और ये 0 वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एट द टाइम 0 आपको यहाँ पे एक रेड एरो के साथ वेव फॉर्म में दिखाई गई है। सेकंड केस में जो टाइम पीरियड आपको दिखाया गया है वो है t/4, मीन्स के 1/4 टाइम पीरियड गुजरने के बाद क्या होगा। अगेन वही बेसिक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो ग्रीन कलर में दिखाई गई थी, और उसमें छोटे टी की जगह आप कैपिटल T/4 अपने टाइम पीरियड की वैल्यूज को पुट करेंगे, और आपके पास यहाँ पे एंगल जो आएगा वो होगा साइन π/2। साइन π/2 बेसिकली 90 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उसके पास ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मीन्स के जब टाइम पीरियड T/4 गुजरेगा तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आपको वेव फॉर्म में यहाँ पे नेक्स्ट रेड एरो के साथ दिखाई गई है। और रेड एरो के हवाले से जो एंगल बनता है वो π/2 के नीचे रेड कलर में 90 डिग्री भी दिखाया गया है। मींस इस 90 डिग्री के एंगल पे जब वैल्यू है ईएमएफ की जो पैदा हो रही है वो मैक्सिमम होगी। थर्ड केस में अगेन टाइम पीरियड जो है उसको दिखाया गया है T/2, मीन्स हाफ टाइम पीरियड हैज़ पास्ड। और अगेन अगर हम छोटे टी की वैल्यू T/2 लिखेंगे तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास साइन पाई मीन्स साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। और डायग्राम में भी हमें 180 का एंगल दिखाया गया है, और मिड लाइन में हमारे पास रेड एरो जो है वो बेसिकली इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह चौथे केस में जब आपका टाइम पीरियड 3/4t होगा, अगेन आप वैल्यूज पुट करेंगे छोटे टी की जगह 3/4t, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी 3π/2, और 3π/2 का मतलब होता है 270, तो साइन 270 की वैल्यू -1, मीन्स हमारे पास जो होगी वो आउटपुट नेगेटिव पीक वैल्यू के बराबर होगी। और इस में डायग्राम में हमें रेड एरो और एंगल 270 डिग्री हमें रेड कलर में दिखाया गया है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास पीक वैल्यू इस एंगल पे या इस टाइम पीरियड पे कितनी बनती है। और एट द एंड दैट इज़ द केस 4, अगेन टी की वैल्यू जब आप लगा देंगे कैपिटल T1 तो आपके पास एंगल बनेगा 2 पाई रेडियंस इक्वल्स 360।
अगेन इट कम्स टू बी ज़ीरो, मीन्स आउटपुट इसकी ज़ीरो हो जाएगी, जो हमें अगेन वेव फॉर्म में इसको 360 एंगल और उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को रेड एरो के साथ दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, और इन एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव फॉर्म। टाइम टेकन बाय द वेव फॉर्म टू कंप्लीट वन फुल cycle is called the time period of the waveform and it is given the symbol t. इसी तरह frequency है number of cycles of that physical alternating quantity in 1 second is called the frequency. Again it is represented by f is equal to 1 by t measured in the hertz, means कि इसको hertz में इसको हम measure करेंगे। Angular frequency, rate of the change of the angular displacement. Rate of change of angular displacement is called angular frequency. आप पढ़ चुके हैं, इसको हम एक ग्रीक लेटर ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू द डेल्टा थीटा बाय टी, मींस 2 पाई बाय टी। यहाँ पे 2 पाई रेडियंस जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करते हैं, तो इसको हमने डिफाइन भी इसी लिहाज से किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और रेट ऑफ, इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि रेट ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मींस कि हमें बताता है कि किस रफ्तार या स्पीड के साथ हमारी कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी के हवाले से बात की गई है, और इंस्टेंटेनियस का वर्ड इंस्टेंट से लिया गया है। इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी, लम्हाती, और हमें पता है कि जब कॉइल रोटेट कर रही होती है तो उसमें थ्रू आउट द टाइम उसके एंगल्स चेंज हो रहे होते हैं और हर एंगल के हवाले से उसकी वैल्यूज़ बदल रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमने कॉइल की रोटेशन में ईएमएफ की वैल्यूज़ को 0 टू मैक्सिमम, देन मैक्सिमम टू 0 एंड देन नेगेटिव एंड देन हमने 0 जो डिफरेंट वैल्यूज़ देखी हैं, तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस आ रही होती है। तो किसी भी लम्हे में, किसी भी एंगल में, किसी भी टाइम पीरियड में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। The instantaneous value is the value of the alternating quantity at a particular instant of the time in the cycle, and there are uncountable number of instantaneous values that exist in a cycle. Next slide पे हमें एक वेव फॉर्म दिखाया गया है, और इस वेव फॉर्म में बेसिक आइडिया इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का दिया गया है। और इसमें आप देखें कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेसिकली एंगल या टाइम पीरियड दिखाया गया है, तो जितना आप एंगल तब्दील करते चले जाएंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5 π/6 एंड सो ऑन, मींस रेडियंस में ये वैल्यूज दी गई हैं। तो इसके अगर पी की वैल्यूज़ को देखा जाए तो पी की वैल्यूज़ भी बदलती चली जाएंगी, जबकि मैक्सिमम पी की वैल्यू हमारे पास π/2 आती है, 90 डिग्री पे आती है। तो इसमें बेसिक आइडिया ये दिया गया है कि जो वेव फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को ज़ाहिर करता है थ्रू आउट द 360 डिग्री ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मतलब यह है कि एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल के कंप्लीट करने में ईएमएफ की वैल्यूज में मुसलसल चेंज रहता है, लिहाजा वो 360 डिग्री में 360 टाइम, अगर हम 1 डिग्री की भी बात करें तो हमें 360 रिजल्ट्स मिलेंगे, मींस पॉइंट टू पॉइंट जो होगा ईएमएफ की वैल्यूज कॉन्टीन्यूसली बदल रही होगी। लिहाजा इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा गया है कि किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी लम्हे में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट पीक वैल्यू क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द अल्टरनेटिव क्वांटिटी ड्यूरिंग द वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू. It is also known as the peak maximum value or the amplitude or the crest value, etc. And the sinusoidal alternating quantity obtains its peak value at the angle of 90 degree. Again वेव फॉर्म में आपको रेड एरो के साथ पीक वैल्यू दिखाई गई है जो कि पॉजिटिव पीक वैल्यू वी नॉट के बराबर है. तो पीक वैल्यू बेसिकली से क्या मतलब है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि एक वेव फॉर्म अपने जो है वो वेव के अंदर इसको अटेन करता है. इसको मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज द पीक टू पीक वैल्यू. दैट इज सम ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक वैल्यूज, इन दोनों को जमा कर देंगे. तो इसमें जो रेड कलर के आप राइट मोस्ट पे देखें तो ऊपर वी नॉट है रेड कलर का, नीचे भी वी नॉट है, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू एक नेगेटिव पीक वैल्यू, इन दोनों को जमा हम कर देंगे. तो मैग्नीट्यूड के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो 2 वी नॉट वगैरह होना चाहिए. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 वी नॉट होनी चाहिए. अ पीक टू पीक वैल्यू इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वैल्यूज. It will be measured in the volts on a voltage waveform as the 2 V naught and may be labeled as VPP or VPK. PK means peak to peak value regarding voltage, or in case of current the waveform it would be labeled as the IPP or IPK. PK.
as I, not the C, is used to represent the value of the current. Means peak to peak value हम वोल्टेज और करंट दोनों के हवाले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें दैट इज अ समेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज. हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पीक वैल्यूज को हम जस्ट उनके मैग्नीट्यूड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन दोनों की वैल्यूज का समेशन होगा. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ के हवाले से हम इसको डिफाइन करेंगे और हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ के हवाले से. सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट को किसी डीसी डिवाइस के साथ मेजर किया जाए, मैं अभी आपको बोल के दिखाऊंगा. तो अगर हम किसी अल्टरनेटिव करंट को किसी डीसी डिवाइस के साथ, डीसी एमीटर के साथ उसको मेजर करते हैं, अल्टरनेटिव क्वांटिटी को या करंट को, तो हमारा इसका रिजल्ट जीरो आता है. उसकी वजह यह है कि जो डीसी एमीटर होता है वो बेसिकली एवरेज ओवर अ साइकिल को कैलकुलेट कर रहा होता है. अगर हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव इन द अल्टरनेटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अगर हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो वो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसका जवाब जो होगा वो ज़ीरो होगा. मतलब अल्टरनेटिंग करंट अगर डीसी से अगर मेजर किया जाए तो उसको हमें वो ज़ीरो दिखाएगा. लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पावर डिलीवर हो रही है बाय द साइकिल वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती. पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होती है. अब इसमें कंसेप्ट ये बनता है जो कि अपने आई का स्क्वायर ले लिया, लिहाजा पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आई का जब स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर वो पॉजिटिव ही रहेगा. लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप नेगेटिव आई का स्क्वायर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि पावर कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं होती, और उसमें बेसिकली हम आई का स्क्वायर ले रहे होते हैं, और अगर नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. इसी तरह जो एवरेज है ऑफ द आई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लेने के बाद जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे इसको मीन स्क्वायर कहा जाता है, और अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ में जो वोल्टेज मेजर किए जाते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ के लिहाज से कैलकुलेट किए जाते हैं. मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिक क्या आइडिया है? इफ़ द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव current is measured by an ordinary DC emitter, then it would measures its value as zero, because it measures the average over a cycle, and as alternative quantity is having the half cycle positive and the half cycle negative, so the average would be zero. But we see the power delivered by the cycle is not equal to zero. And what is its reason? Because power is equal to the I square R, and the value of the I square, it becomes positive even for the negative half cycle of the current. The third point, that is the average of the I square is not equal to zero, and this is called the mean square value, and usually the alternative quantities are measured by the square root of this mean square value, and it is represented by the VRMS. फाइनली वी कैन डिफाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आर द करंट विच अ डिवाइस इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग. The value of the voltage or the current which a device is capable of providing is called the root mean square value. The value of the voltage or the current which a device is capable of providing, मतलब करंट या वोल्टेज की वो वैल्यू जो कि एक डिवाइस प्रोवाइड कर सकती है, उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं. और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द वी नॉट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड इट इज इक्वल टू द 0.7 times V naught. Again, root mean square value of the current is also I naught divided by square root of 2, and 0.7 times the I naught. ये हमारे पास इस root mean square values की हवाले से बात की गई है. इस टॉपिक में मेरा ख्याल है जो स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है 0.7 के ऊपर नीचे कुछ डैश या जो है वो लाइनें आपको शायद नज़र आ रही होंगी कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कुछ जो है वो मिस्टेक है. इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हवाले से एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और वो उसका है जी एक वेव फॉर्म के इस इक्वेशन को हमने कैसे जो है वो कैलकुलेट किया, वो मिसिंग है यहाँ पे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वेव फॉर्म को जो है वो डिस्कस करेंगे. इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा. अगर आपको लगता है कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसका मुझे रिस्पॉन्स बताइएगा, कसम पोस्ट कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि किसी एनिमेशंस के थ्रू आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर कर सकूँ. और अगर कुछ सवाल पूछना हो तो उसको पूछिएगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक्स लॉट एंड स्टे ब्लेस्ड. आमीन.